discussing something about money supply, the high-powered money supply. I told you that commercial banks create money supply, and that is why the power of money created by commercial banks is greater than one. जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि whatever money we deposit in banks create more money out of it. तो total market में money increases. That is why we call it high powered. High powered means the money supply created by Reserve Bank is not limited. It is further expanded by the commercial banks. और जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज क्रेडिट क्रिएशन. तो आज हम लोग क्रेडिट क्रिएशन पर, क्योंकि फुल क्वेश्चन भी आता है, तो विल ट्राई टू डिस्कस इट इन ए बिट ग्रेटर डिटेल, कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए. एंड सो व्हाट हैपेंस इज, प्रिया सिंह देर से ज्वाइन करने के बाद गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग पहले वालों का. लेट्स स्टार्ट विद कि हम लोग क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी क्रिएट क्रेडिट, राइट. तो कुछ शब्द हम लोग सीखेंगे, कर देंगे उत्तम श्रीवास्तव. आई डू इट अगेन लेटर. पहले मैं क्रेडिट क्रिएशन को फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दूं, तब आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी समझ में आ जाएंगे. फिर मैं एक और मनी सप्लाई पढ़ाऊंगा. तो मे बी मैंने आपसे पहले भी बता दिया कि मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक भी मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लासेस, और कोशिश करता हूं कि 17 से पहले जब हमारा बीए, दिस इज बीए पार्ट 2, अच्छा बीए पार्ट 2 तो जनवरी में होगा ऑफलाइन, पार्ट 3 हो जाएगा दिसंबर में ऑफलाइन. तो लेट मी स्टार्ट विद, तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड सर्टेन वर्ड्स, राइट, व्हाट दीज सर्टेन वर्ड्स आर. नाउ आई एम प्रेजेंटिंग, अरे अभी मल्टीप्लायर ही नहीं पढ़ा था मैंने. So now I am presenting my screen to you people. So we will be trying to explain certain words, what these words are. The first word I like to tell you is that there are two methods of banking world over. One is known as branch banking system. The other is known as unit banking system. Unit banking system is followed in many places like, say, USA. But most of the world, we follow this branch banking system. That means there are 10 or maybe 20 banks having branches at many places. For example, we talk of a state bank, right? State bank has a branch. Maybe in Allahabad it has 5 branches. In Kanpur it has so many branches. So all over India it has, say, more than 7,000 branches. So the bank is one, it has many branches. This is called as branch banking system. And there are several banks. There can be Bank of Baroda, there can be a United Commercial Bank, there can be Punjab National Bank, and so on and so forth. Even the private banks can have many branches. Axis Bank has many branches, HDFC branch has many branches. In some part of the world, say, we have one branch per state or one branch per district. What does this mean, one branch? It means there is only one bank having many branches in particular district or in particular place or in particular state. There will be only one bank. It may have many branches. So it is only one bank having all the branches. तो जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही बैंक की ब्रांचेस हो, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में देयर कैन बी अनदर बैंक, उसी की ब्रांचेस होंगी. इन वन डिस्ट्रिक्ट और इन वन प्लेस और बैंक्स की ब्रांचेस नहीं होंगी. ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनको थोड़ा एक्सप्लेन अलग अलग करना पड़ता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. दूसरा शब्द
हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स, और इसी के साथ दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। डिफिनेशन बड़ा क्लियर है। प्राइमरी डिपॉजिट माने व्हेन एनी न्यू डिपॉजिट by any person in a bank। मैंने अपना खाता खोला, 1,000 जमा किए, या मेरा खाता खुला हुआ है पहले से, मैं 5,000 जमा करता हूं। बाई कैश और बाई चेक इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हेन आई डिपॉजिट माई मनी टू ए बैंक, इट इज प्राइमरी डिपॉजिट, प्राथमिक जमा, प्राथमिक जमा, प्राइमरी। That means this is the money that I have deposited in the bank and I can take it out anytime. Derivative deposits are deposits created by bank during credit creation. बैंक जब किसी को लोन देता है, तो मैंने कल बताया, लोन is not given in cash, it is given through a checkbook. So that loan basically is a deposit in the same bank and a checkbook is given to you. So this is a deposit which is derived, derived meaning forced। आपको जबरदस्ती कैश दे देते तो आप लेके चले गए होते घर, कैश नहीं देते। आप 20 लाख का लोन लीजिए, 40 लाख का लोन लीजिए, दे गिव यू चेक बुक, भाई इस्तेमाल करिए। आप पूरे 40 लाख का पेमेंट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, बट यू विल डू इट ओनली थ्रू ए चेक, नॉट थ्रू ए कैश। दैट मीन्स योर मनी रिमेन्स इन द बैंक, योर मनी रिमेन्स इन द बैंक, दैट इज नोन एज डिराइव्ड डिपॉजिट। अब यहां पर एक तीसरा शब्द भी पढ़ लेते हैं जो कल थोड़ा सा पढ़ा था, लायबिलिटी, which bank has to make payment of। liability प्राइमरी डिपॉजिट की भी होती है, डेरिवेटिव डिपॉजिट की भी होती है। any checkbook issued by the bank against a primary deposit is a liability or against a derivative deposit is a liability। ये चेक जब बैंक ने दिया है तो बैंक इसको आपको कैश करेगा। कैसे करेगा? दैट इज basically दायित्व is basically the responsibility of bank to honor its checks। दायित्व नोन एज। बैंक के पास तिजोरी है, वो भी इसका एसेट है। बैंक के पास कंप्यूटर्स हैं, वो भी इसका एसेट्स है। तो एसेट्स कैसे होते हैं? देयर आर फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल माने जो उधार दिया हुआ है किसी को, प्लस देयर आर फिजिकल एसेट्स। एक बड़ी मजेदार चीज है कि बैंक में एक तो बाई डेफिनेशन ही 60% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन जनरली बैंक में 80% तक फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं और 90% फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। फिजिकल एसेट्स नहीं रखते बैंक। जनरली किराए का मकान लेकर काम चलाता है। जनरली बैंक बिल्डिंग को ओन नहीं करता। हेड ऑफिस वगैरह को छोड़ दीजिए तो जनरली बैंक्स डोंट ओन देयर बिल्डिंग, किराए पर काम चलाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू कीप फिजिकल एसेट्स विद देम। तो दीज आर कॉल्ड एज एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में हम लोग परिसंपत्ति लिखते हैं, लेकिन आधुनिक भाषा में से आदाए भी लिखते हैं। क्यों लिखते नहीं जानता, हम इसे परिसंपत्ति लिखते हैं। एक और शब्द बता दूं तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग पढ़ते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये कॉमर्स का शब्द है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। इट इज ए मेथड ऑफ कीपिंग एन अकाउंट।
दोहरी प्रविष्टि खाता प्रणाली। एक ही आपको जो अमाउंट इधर दिखाई देगा वही अमाउंट इधर भी दिखाई देगा, और जो बुक वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लाइबिलिटीज हैं उससे कम एसेट्स नहीं होनी चाहिए, और जितने एसेट्स कम हो सकती है लाइबिलिटीज पास नहीं होने चाहिए, वरना सिस्टम में आप, हम पहले शब्द को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ब्रांच बैंकिंग और यूनिट बैंकिंग में कोई नहीं हो। ए ने फिर 10 लाख रुपए में से इसने 5 लाख का चेक काट के दे दिया मिस्टर बी को, तो ये कैश नहीं दे रहा, इज नॉट मेकिंग एनी पेमेंट इन कैश, उसने चेक दे दिया। बी भी इसको कैश नहीं करेगा, वो अपने बैंक में जमा कर देगा, तो से दिस इज एसबीआई, दिस इज पीएनबी। इसी तरह हो सकता है कि कोई दूसरा चेक पीएनबी का किसी आदमी का 4 लाख का कहां जमा हो जाए, स्टेट बैंक में जमा हो जाए। ध्यान से देखिए, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, ट्रांजैक्शन इज ऑफ चेक्स। इसको हम कहते हैं क्लियरिंग सिस्टम, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक अभी क्रेडिट क्रिएशन है। आई एम डिस्कसिंग क्रेडिट क्रिएशन, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हाउ क्रेडिट इज क्रिएटेड, और इसका फॉर्मूला क्या है, हाउ इट इज मेंशन्ड। पे चले गए, इलाहाबाद में के चेक एसबीआई भी आ गए। शाम को हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा चेक आपके पास इतने का है, आपका चेक हमारे पास इतने का है, वी कैंसिल इट आउट। हम इसे क्या कर रहे हैं, कैंसिल, और कोई कैश का लेन देन नहीं कर। अगर यूनिट बैंकिंग है तो और भी प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट बैंकिंग में देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो वो आपस में लेना देना है ही नहीं। तो चाहे मल्टीपल ब्रांचेस हो और चाहे यूनिट ब्रांचेस हो, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एज सच। ये जो मैंने शब्द लिखे हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, इनको आई एम एक्सप्लेनिंग। ब्रांच बैंकिंग माने देयर आर 5 to 10 बैंक्स जिनकी ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्री होती हैं। यूनिट बैंकिंग माने एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही बैंक होगा, उसकी चाहे जितनी भी ब्रांचेस, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां पर क्लियरिंग करनी पड़ती है, यहां पर क्लियरिंग नहीं करनी पड़ती। प्राइमरी डिपॉजिट इज द डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन हु हैज नॉट टेकन ए लोन, who is depositing the money to utilize it। हम पैसा जमा कर रहे हैं, जब चाहे खर्च करेंगे। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कम फ्रॉम लोन्स, जो किसी को लोन मिलता है उसको हम क्या करते हैं कि कैश करके उसके नाम से खाता खोल देते हैं। वी ओपन एन अकाउंट एंड उसके अकाउंट में हम कहते हैं हमने पैसा जमा कर दिया, जब चाहे निकाल लो। तो दिस इज अ डिपॉजिट दैट वी हैव क्रिएटेड बाय बैंक्स, राइट। So this is another different. Liability is what we have to pay, asset is what we have to receive, and double entry bookkeeping is we enter both sides, liability as well as assets together, so that the balance can be maintained। ये मैंने सिर्फ आपको शब्द समझाए हैं, this is all। अब हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट, जिसको हम लोगों ने कहा था क्रेडिट क्रिएशन, या क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। हम लोग इसे टेबल से समझेंगे और फिर इसे डायग्राम से समझेंगे। सपोज हम लोगों ने कल कहा था 1000 इज द प्राइमरी डिपॉजिट। हमने कहा प्राइमरी डिपॉजिट माने पहली दफे जमा किया किसी आदमी ने, दिस इज प्राइमरी डिपॉजिट। तो दिस कम्स अंडर ए लायबिलिटी, दायित्व। जैसे ही 1000 का दायित्व हुआ, हमको क्या करना है, 1000 के एसेट्स क्रिएट करने हैं, डबल एंट्री बुककीपिंग। तो हमने क्या किया, 100 रुपए कैश रख लिए, ये मानकर कि कोई भी आदमी, इसको हम अल्फा कह देते हैं, किसी भी दिन एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ एवरी डिपॉजिटर। मैंने कल पढ़ाया था कि डिपॉजिट क्यों करते हैं, जब जरूरत होगी तब निकालेंगे। हम ये मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि नॉट मोर देन 10% पीपल टेक आउट मनी
फ्रॉम एनी बैंक ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो अगर 100 लोगों ने पैसा जमा किया है तो 10 लोग ले जाएंगे, 10 लाख लोगों ने जमा किया है तो 1 लाख ले जाएंगे, यानी 10% पैसा कभी भी निकाला जा सकता है। तो हमने क्या किया, प्लस 900 हमने क्या कर दिया, उधार दे दिया। तो नाउ दिस इज कैश विद द बैंक, दिस इज हमने क्या कहा, डेरिवेटिव डिपॉजिट या उधार जो दे दिया, ये हमारे पास हो गया। नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल। जैसे ही हमने 900 अपने पास रखा तो दिस बिकम्स ए लायबिलिटी, क्योंकि 900 तो हमने चेकबुक दे दी। नाउ दिस बिकम्स ए लायबिलिटी टू अस। तो हमने फिर क्या किया, इसमें से 90 रुपए कैश रखा, प्लस हम लोगों ने 810 किसी को उधार दे दिया। जैसे ही हमने 810 किसी को उधार दिया तो 810 जो है ये फिर हमको उसका एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो 81 हमने अपने पास रख दिया, प्लस 29 ले आए। फिर मान लीजिए 729 हम लोगों ने कर दिया, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि वील हैव 72.90 पैसे हेयर प्लस समथिंग लाइक दिस। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोगों को देखना है। तो इट इज ऑलवेज इजी कि अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमको पता चल जाएगा टोटल कितना बैंक ने मनी क्रिएट किया। प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, इसको हम कहेंगे पहला डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, इसको हमने कहा। और इसको हमने कहा टोटल मनी क्रिएटेड, यानी इसको हम कहेंगे चेंज इन मनी। दिस इज वी कॉल्ड इज डेल्टा मनी। डेल्टा मनी टोटल मनी कितना सप्लाई किया। अब इसको इफ हम एल्जेब्रिक फॉर्मूले से करेंगे, थोड़ा लिख भी लीजिएगा क्योंकि मैं इसे बहुत देर तक नहीं रख पाऊंगा आपकी स्क्रीन पर, तो लिखते जाइएगा लेकिन समझ के लिखिएगा। मैं 1-2 मिनट का टाइम आपको दे दूंगा। तो डेल्टा मनी कितना होगा, हमको क्या पता लगाना है कि डेल्टा मनी या टोटल चेंज इन मनी सप्लाई बैंक्स कितना कर देंगे। ध्यान से देखिए हमें क्या लिखना है, डेल्टा मनी कितना क्रिएट करेंगे बैंक्स, यानी 1000 रुपए तो कैश जमा ही हुआ, तो ये तो पहला चेंज हो गया, इसको हम लोगों ने लिखा डेल्टा डिपॉजिट्स। तो पहले पीरियड में तो डेल्टा डिपॉजिट ही है हमारे पास, केवल डेल्टा डिपॉजिट कितना है 1000। ये 1000 डेल्टा डिपॉजिट है, इसके बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि ये बैंक में जितना पैसा था उसमें हमने कितना चेंज कर दिया। तो मान लीजिए 10 करोड़ था, अब 1000 किसी ने जमा किया, तो डेल्टा मनी इज इक्वल टू डेल्टा डिपॉजिट्स, जितना डिपॉजिट हुआ वही चेंज हुआ इन द फर्स्ट पीरियड। लेकिन सेकंड पीरियड में कितना मनी जनरेट हुआ, इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर। और ध्यान से देखिए हुआ 900। ये 900 आया कहां से, बड़ा सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 माइनस एल्फा डेल्टा डी। 1 माइनस एल्फा क्या है, एल्फा हमने कितना माना है 10%, हम 20% मान लें, हमारी मर्जी है, हम अब क्यों 10% लेते हैं दैट विल डिस्कस। लेकिन मान लीजिए कि हमने 1 माइनस एल्फा यानी 10% घटा दें, तो 1 माइनस एल्फा क्या आया, 1 माइनस एल्फा विच इज इक्वल टू 10%। तो 10% ऑफ द डेल्टा डी, 10% ऑफ द डेल्टा डी कितना है, हम लोगों ने कितना जमा किया 1000, तो हमने कितना कर दिया 100 कम कर दिया, तो जितना जमा किया कितना कर दिया 900 जमा कर दिया। तो डेल्टा डी माने 900 यहां पर क्यों आया, क्योंकि इसमें से 10% कम हो गया। तो सेकेंड पीरियड में कितना मनी जनरेट हुआ, पहले पीरियड में कितनी चेकबुक बटी डेल्टा डी के बराबर, दूसरे वाले में कितनी चेकबुक जनरेट हुई 1 माइनस एल्फा, 10% तो काट लिया है 900 के बराबर। अब अगर हम थर्ड पीरियड में चले जाएं तो क्या होगा, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा डी। अब हमने पहले 10% काटा फिर 10% काट लिया, तो ये हो गया 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा डी। कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोगों ने इसको भी लिख लिया। फिर अगले पीरियड में कितना हुआ, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 810 प्लस उसके अगले वाले में क्या लिखा 1 माइनस एल्फा क्यूब डेल्टा डी। तो हर पीरियड में बढ़ता जाएगा, कितने पीरियड तक बढ़ेगा मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, लेकिन कितने पीरियड तक बढ़ेगा मैं लिखूंगा 1 माइनस एल्फा
n-1 डेल्टा डी। अब मैंने n-1 क्यों लिखा? क्योंकि nth पीरियड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। nth पीरियड में सब ऐसा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना डेल्टा m होगा या कितना चेंज होगा हम कैसे निकाल सकते हैं? जितना पहले पीरियड में जमा हुआ प्राइमरी डिपॉजिट उतना ही चेंज हुआ मनी में। तो पहला पीरियड तो बिल्कुल क्लियर है, डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा डी। 1000 बढ़ा, 1000 की चेकबुक दी। लेकिन इस 1000 में से 100 अपने पास रख के अगली बार कितनी चेकबुक दी? जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, कितनी चेकबुक दी हमने? उस चेकबुक की अगर हम लोग बात करें तो आएगा हमारा करीब करीब we'll say कि ये this will come to around 900 रुपीज। तो ये 900 रुपीज आएगा। इसके लिए हमने क्या लिखा? 1 माइनस एल्फा डेल्टा डी। डेल्टा डी 1000 है, इसमें से 10% निकाल दिया तो 900 बचा। अगले पीरियड में 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा डी। और हम लोग इसको लिखते चले गए क्योंकि इसमें इधर बनाएंगे कैलकुलेशन तो फिर पॉइंट्स आते ही चले जाएंगे। तो वी कैन यूज दिस एलजेब्रा बिल्कुल सिंपली। तो हमारी ये हो गई। इसके आगे लिख लीजिए इक्वेशन 1। बहुत सिंपल इक्वेशन है, कोई मुश्किल चीज नहीं। अब हम क्या करने जा रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 1 माइनस एल्फा से गुणा करने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, 3 स्टेप में आसानी से जवाब मिलेगा। सिंपल स्टेप क्या है? द सिंपल स्टेप इज that we are going to multiply left hand side and right hand side by 1 minus alpha। ठीक है ना? तो अब अगर हमने 1 माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस एल्फा डेल्टा। इसमें तो हमने 1 माइनस एल्फा से इधर गुणा कर दिया तो आ गया 1 माइनस एल्फा डेल्टा एम। कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इधर जब गुणा करेंगे तो हर लाइन में गुणा करना पड़ेगा बिकॉज देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन जब पहला गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस एल्फा डेल्टा डी। अगले वाले में करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस एल्फा स्क्वायर डेल्टा डी। फिर गुणा करेंगे तो 1 माइनस एल्फा क्यूब डेल्टा डी। और फिर गुणा करते चले जाएंगे तो जो लास्ट वाला है उसमें क्या आएगा? 1 माइनस एल्फा रेज टू द पावर एन डेल्टा डी। यहां n-1 था तो यहां आ जाएगा। और इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन 2। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया? सिंपली 1 माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। द सिंपल statistical and mathematical rule is if you multiply both sides by the same number the result will not change, the equation will not change, equation will be true always। तो हमने दोनों साइड को 1 माइनस एल्फा से गुणा कर दिया। तो जब यहां पर गुणा किया तो 1 माइनस एल्फा डेल्टा डी आ गया। जब यहां पर गुणा किया तो 1 माइनस एल्फा स्क्वायर आ गया। जब यहां पर गुणा किया तो 1 माइनस एल्फा क्यूब आ गया। ऐसे ही करते चले गए। अंत में क्या आया? 1 माइनस एल्फा एन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकता है क्योंकि मैं तीसरे स्टेप पर इक्वेशन आ जाएगी हमारी, तो तीसरे स्टेप पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऐसा तो मैंने कोई मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है जिसमें आपको कोई चीज समझ में न आ रही। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। इसी वाले को मैं दोबारा आपके सामने कर दूंगा। लेकिन 1 मिनट फिर देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन, घटा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको घटा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। माने नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बहुत सिंपल है। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 से नंबर 2 को घटा रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या आएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो यहां पर डेल्टा एम ऊपर है और इसमें से हम घटा क्या रहे हैं? 1 माइनस एल्फा डेल्टा एम। ये तो इधर आ गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहां से डेल्टा एम लिया, इसमें से इसको घटा दिया तो डेल्टा एम माइनस 1 माइनस एल्फा डेल्टा एम। यह आ गया लेफ्ट हैंड साइड में।
अब जरा राइट हैंड साइड में देखें तो क्या आ रहा है। पहला अक्षर है डेल्टा डी, तो डेल्टा डी आ गया। दूसरा अक्षर है 1 - अल्फा डेल्टा डी, यहां पर भी है, इसमें से इसको घटाया तो ये क्रॉस हो गया, ये कट गया। फिर क्या आया, ये घटाया, ये घट गया क्योंकि ये भी क्रॉस हो गया, दिस इज ऑल्सो क्रॉस्ड। तो बचा क्या यहां, -1 - अल्फा, सॉरी 1 - अल्फा, वन -अल्फा रेज टू द पावर n डेल्टा डी। और हम जानते हैं कि 1 - अल्फा n m पीरियड में 0 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इधर सिर्फ बचा डेल्टा डी। बाईं तरफ क्या बचा है वो हम लोगों ने देख लिया, डेल्टा m -1 - अल्फा डेल्टा m, और दाहिनी तरफ बचा डेल्टा डी। अब जरा ध्यान से देखिए कि जब इस इक्वेशन को खोलेंगे तो क्या निकलेगा। यहां पर डेल्टा m है, -1 डेल्टा m है, तो डेल्टा m माइनस डेल्टा m ये भी कट जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा m। हमें निकालना क्या है, डेल्टा m, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/अल्फा डेल्टा डी। कुल कितनी मुद्रा बढ़ेगी, 1/अल्फा डेल्टा डी। 1/अल्फा कितना लिया है हम लोगों ने, इज इक्वल टू 10%, यानी 1/10/100 गुणे 1000। इसका मतलब हो गया, ये आ जाएगा, अगर हम इसको ऊपर की ओर ले जाएं तो ये 0 कट गया, तो आ जाएगा 1000 × 10 इज इक्वल टू 10,000। कुल कितनी मनी बढ़ेगी, 10,000। एल्जेब्रिकली निकाल सकते हैं, यहां से भी निकालेंगे तो ये निकल आएगा, लेकिन कम से कम बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। एल्जेब्रा से इक्वेशन बड़ा आसानी से निकल आएगी। यानी अगर अल्फा 10% है तो डेल्टा m कितना हो जाएगा, 1000 जमा होने पर 10,000 हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए हम अल्फा को 20% ले लेते तो क्या होता, ले सकते थे, तो यहां हो जाता ये इज इक्वल टू 20%, तो ये हो जाता 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये हो जाता 5,000। यानी बैंक अगर अपने पास ज्यादा पैसा रखें, कम उधार दें, तो कम मुद्रा बढ़ाएंगे, और अगर कम मुद्रा अपने पास रखें, अल्फा 10% रखें, तो 10,000 बढ़ाएंगे। अगर अल्फा 5% कर दें तो 20,000 बढ़ाएंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन किस पर निर्भर करता है, हाउ मच बैंक कीप कैश विद देम एंड हाउ मच डू दे गिव लोन। मुझे लगता है इस इक्वेशन को आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, नहीं कॉपी किया है तो मुझे बताइए, मैं 1 सेकंड को और रुक जाता हूं। Has it been done? यस सर। यस सर। यस सर। और कोई समझने में दिक्कत है? देखिए मैंने कहा था ना 118-20 हो जाते हैं, शुरू में बहुत कम होते हैं। क्यों देर से आते हो, हम बंद कर देंगे पढ़ाना किसी। कुछ इसमें दिक्कत है, कहीं भी समझ में आने, क्योंकि वो जो 2 शब्द हैं अब आ जाएंगे। तो डेल्टा m माने, हाँ बोलो बेटा, अब है। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुझे लगता है, अरे 5 क्लास की गणित पढ़ा रहा हूं मैं बीए के बच्चों को, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं। मैं इसीलिए बहुत सिंपल अलजेब्रा से ही पढ़ाता हूं। मैं बहुत मैथमेटिक्स का इस्तेमाल जब एमए में आओगे तभी करूंगा, लेकिन तब तक मैं क्यों पढ़ाऊंगा, मैं रिटायर हो चुका हूं, बिना बात के तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, किसी और को पढ़ाना चाहिए। तो वील सी व्हाट हैपेंस। तो अभी मैं सिर्फ जो बता रहा था वो क्या बता रहा था कि हम ध्यान से देखें कि किन शब्दों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और ये जो शब्द है इसका क्या मतलब होगा। अब हम लोग समझ सकते हैं, बिकॉज नाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू व्हाइट बोर्ड एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट डज इट एक्चुअली मीन।
तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है और मनी मल्टीप्लायर क्या है और क्या चीज है और कैसे उस इक्वेशन से हम लोग बात कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करें। हम लोगों ने ये देखा कि 1000 इज प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट माने हम लोगों ने क्या लिखा है, डेल्टा माने चेंज इन टोटल डिपॉजिट्स। चेंज इन टोटल, जितना बैंकों में पैसा जमा था उसमें जितना नया जमा किया गया उसको हमने लिखा 1000। तो मनी कितना क्रिएट हो सकता है, डेल्टा एम मनी कितना हो सकता है। पहली बात तो ये डिपेंड करेगा नंबर एक किस पर डिपेंड करेगा कि हमने अल्फा क्या लिया है। अल्फा क्या है, बैंक्स क्या सोचते हैं। सर सर बोर्ड पे बोर्ड नहीं नहीं है। शो हो रहा है सर। ओ बोर्ड नहीं दिख रहा है, ओके अभी दिखेगा। एक सवाल मैं भी पूछूं आप लोगों से, ऐसे ही पूछ रहा हूं, पूछ लूं। हाँ, कितने लोग बोर्ड से पढ़ाते हैं। कोई नहीं। तो हमारे वाले में दो लोग, हाँ स्वाति मैम और आप। हाँ, स्वाति मैम पढ़ाती होंगी, हम चलो पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो मैं इससे नहीं पढ़ाते, तो फिर क्या करते सर हो। पीपीटी से पढ़ाते हैं, पीके घोष सर। पीके घोषा नहीं पढ़ाना, चुप चलती है। जी सर, पीपीटी से। अच्छा हुआ, कम से कम हमसे बोलो। हिस्ट्री वाले कहानी सुनाते। हम नहीं जानते एक्चुअली क्या है कि मैंने जब रिटायरमेंट हुआ था मेरा, तो मैंने सोचा था यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैंने अन अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो पैसा बहुत ज्यादा देते हैं, तो मैंने सोचा वहां पढ़ाऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा सर आप बोर्ड से पढ़ाइए, तो मैंने बोर्ड से पढ़ाना शुरू किया। अब बहुत से लोगों ने बोर्ड से पढ़ाना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया है, लेकिन बोर्ड में भी वो बात नहीं आती। जब मैं सामने देखता रहता था आप लोगों को तो ज्यादा मजा आता था। यानी देखूंगा कभी आगे। तो बैंक्स कितना सोचते हैं अल्फा के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लिखना नहीं है कहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। जो हम लोगों की जानकारी है बैंकों के बारे में वो ये है कि एक बड़ी मशहूर टेलर कंपनी थी, लिज एंड टेलर्स। ये बड़ी मशहूर कंपनी थी, इसके पास बहुत पैसा था। तो पहले के जमाने में भारत में भी यही होता होगा, मैं तो इंग्लैंड की कंपनी की बात कर रहा हूं, लेकिन भारत में भी ऐसे ही होता था। जैसे अगर आपके पास कुछ पैसा है, सोना है, अशर्फियां है, तो लोग अपने घरों में नहीं रखते थे क्योंकि तिजोरियां नहीं होती थी, एंड देयर वर नॉट मेनी बैंक्स। तो वो महाजन के पास या साहूकार के पास पैसा रख के आते थे, और जिस ढंग से रख के आते थे उसी ढंग से वो पैसा जब उनको चाहिए था मिल जाता था, लेकिन उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए देना पड़ता था ब्याज। तो पहले बड़ी मजेदार की बात थी, आप उधार लेने जाएं तो भी आपको ब्याज देना पड़ता था, और जब आप जमा करने जाते थे तो भी ब्याज देना पड़ता था। लीज एंड टेलर कंपनी ने एक बड़ी मजेदार चीज देखी, क्योंकि उनके पास बहुत लोग पैसा जमा करने आते थे, करीब करीब 1000, 1200, 1500 लोग आते थे, और वो पैसा सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी तिजोरियां बनवानी पड़ रही थी। और उन्होंने ये देखा कि लोग पैसा जनरली 5-6 महीने बाद ही आते हैं, या कभी कभी साल भर बाद आते हैं, और वो पैसा सुरक्षित रखना पड़ता है। तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया कि अगर आप जमा कर रहे हैं तो हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे। और उन्होंने क्या किया कि इसी पैसे को, यानी दूसरे के पैसे को, उन्होंने ट्राई करके देखा हम उधार दे दें। तो जब उनका उधार वापस आता था, उससे पहले जमा लेने वाले लोग नहीं आते थे, तो उनको लगा, बड़ा मजा आया कि बड़ा अच्छी बिजनेस है, हम लोगों के पास, हमारे पास लोग जमा कर रहे हैं, इसी से हम उधार दे रहे हैं और हमको प्रॉफिट मुफ्त में मिल रहा है। क्योंकि ब्याज की रेट उस जमाने में कितनी थी, 2% पर मंथ, माने साल में 24%। तो पता चला कि एक आदमी साल भर लेने नहीं आया, उसको हमने उधार पे दे दिया, तो हमें 24% मुफ्त में मिल गया। फिर उन्होंने एक नया काम शुरू किया कि अगर आप जमा करेंगे तो हम आपको कुछ ब्याज देंगे। तो पूरे इंग्लैंड के शहर के लोग इन्हीं के पास आने लगे कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हम पैसा भी दे रखें और हमको ब्याज भी मिले। यहां से ये बिजनेस शुरू हुआ। तो ट्रायल एंड एरर करके ये पाया गया कि जनरली 5 या 6% लोग अपना पैसा लेने एक दिन में आते हैं, और जनरली
7 से 8% लोग जिन्होंने उधार लिया है वो अपना जमा देने के लिए आते हैं, तो सेफर साइड में उन्होंने 10% ले लिया, और 10% लेने के बाद उन्होंने देखा कि उनका कभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ बड़ी कंपनी भी थी कि उनको कभी पेमेंट करने में दिक्कत आई हो। तो ये जो बैंकिंग का कंसेप्ट आया वो यहां से आया कि आपके पैसे से आप ही को उधार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधार आप वापस भी करेंगे, विद ब्याज वापस करेंगे। तो जो उधार का पैसा आता रहेगा वो, प्लस जो नए डिपॉजिट्स आते रहेंगे वो, उनसे जो लोगों को पैसा चाहिए हम कैश में दे सकेंगे। लेकिन एक हमारे पास 10% का क्या होना चाहिए? एक रिजर्व होना चाहिए। इस रिजर्व को चेस्ट कैश कहते हैं। किसी किताब में कुछ लिखा हो तो मत पढ़िएगा। चेस्ट कैश माने जो बैंक अपनी अलमीरा में हमेशा अपने पास रखता है, दिस इज नोन एज चेस्ट कैश। जो CRR VRR है वो सब अलग चीजें हैं, उनके बारे में अभी बात ही करने जा रहा हूं, लेकिन वो अलग चीजें हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डेल्टा M इज इक्वल टू 1/अल्फा, जितना भी परसेंट हो 10% रखते हैं तो डेल्टा D, यानी अगर 1000 जमा हुआ तो हमने 1000 तक कर लिया, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ। और इसके साथ एक और शब्द पढ़ना पड़ेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हुआ। और फिर पढ़ना पड़ेगा इसकी लिमिटेशंस। तो 1000 मनी का कितना मनी कर दिया? 10,000। तो हम 1000 को जब 10,000 कर दिया तो हम इसे कहते हैं मनी को मल्टीप्लाई कर गया 10 गुना। इसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर इससे कम हुआ क्योंकि 1 माइनस अल्फा डेल्टा डी में से, डेल्टा डी तो पहले से जमा था ना, ये तो 1000 पहले से जमा था, तो इस 10,000 में से इस 1000 को निकाल दीजिए, तो क्रेडिट कितना बना? 9,000। इसको हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, साख गुणक। साख कितनी बढ़ी, इसे हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी साख गुणक। ये होगा एक्चुअल में कितना? तो एक्चुअल में कितना होगा? ये क्या है? कैपेसिटी। इतना बना सकते हैं, क्षमता। बैंक कितना बना सकते हैं, इसको हमने क्या कहा? क्षमता। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, बैंक के साख सृजन की क्षमता, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जरा सेकंड पार्ट, क्या इतना ही बनता है? तो दो हिस्से कर लें, एक सप्लाई की तरफ से बात करेंगे और एक डिमांड की तरफ से बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? लड़के ने कहा था डायग्राम फिर पढ़ा दीजिए। ये पैसा तो करेंसी इन सर्कुलेशन है, इसकी पावर तो एक ही है। तो अगर हम यहां से 90 का कोण बनाएं तो पता चलेगा कि जितना हमारा क्रेडिट करेंसी इन सर्कुलेशन है उतनी ही मनी सप्लाई है, क्योंकि इसकी तो पावर 1 है। ODRBI मैंने आपसे बताया था बहुत कम होती है, ODRBI हमारी बहुत कम होती है। तो उसको अगर हम ले लें तो ये आ गया ODRBI। तो अगर यहां तक देखें तो डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी बिल्कुल बराबर बराबर है, लेकिन जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है वो फिक्स्ड है। यानी बाकी पैसा कहां पर जमा है? ये बैंक डिपॉजिट्स में जमा है। तो जो बैंक डिपॉजिट्स में जमा है वो, इसकी पावर 1 नहीं है, उसकी पावर 1 से ज्यादा है। कितनी मांग करेंगे? अब ध्यान से देखिए, है तो सप्लाई इतनी बैंकों में जमा, लेकिन बैंकों ने डिमांड के आधार पर टोटल मनी सप्लाई को इतना बढ़ा दिया। ये क्या हुई? रिजर्व मनी, या क्या हुई? ब्रॉड मनी। ये कितनी बढ़ी? जितनी डिमांड होगी। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हो सकता है ज्यादा बना दें, कैपेसिटी से ज्यादा तो बना ही नहीं सकते, कैपेसिटी तो अलग क्रिएट हो गई। अभी हम लोग कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो डिमांड थियरी है क्या बताती है कि हायर द डिमांड ऑफ क्रेडिट, बैंक्स कैन क्रिएट मोर क्रेडिट, तो मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड। तो मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है बैंक के हिसाब से, लेकिन कॉमर्शियल बैंक के हिसाब से फ्लो कंसेप्ट है और डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। दिस डिपेंड्स अपॉन डिमांड। लेकिन एक प्रॉब्लम और है ना, ये जो कैपेसिटी है ये कितनी होती है, ये तो अभी हम लोगों ने लिखा, लेकिन कैपेसिटी को हम कंट्रोल करते हैं, लिमिट्स क्रिएट करते हैं। एक लिमिट किसने क्रिएट कर दी? डिमांड ने। जितनी डिमांड होगी उससे ज्यादा तो आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुल कितना क्रिएट कर पाएंगे? मान लीजिए 10% अल्फा है तो जस्ट कैश इतना हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे में किसी दिन बैंक में अगर कोई खतरा उत्पन्न हो जाए तब क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन? इसलिए रिजर्व बैंक इनके ऊपर कुछ कंट्रोल निकालता है, लगाता है। उन कंट्रोल्स को हमको पढ़ना पड़ेगा, वो अलग हैं, और वो हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंकिंग के चैप्टर में, क्योंकि रिजर्व बैंक इन लोगों के ऊपर, टोटल के ऊपर कंट्रोल करता है, तो इन्हें हम सेंट्रल बैंकिंग के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्रेडिट क्रिएशन की लिमिटेशंस क्या है? डिमांड साइड से जो लिमिटेशंस हैं वो मैंने सिर्फ बता दी। हायर द डिमांड हायर द क्रेडिट, लोअर द डिमांड लोअर द क्रेडिट। ये तो इकोनॉमी पर निर्भर करेगा, है ना, और भी चीजों पर निर्भर करेगा। जैसे ब्याज दर अगर ज्यादा है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो डिमांड लो होगी। अगर अब यहाँ पर रेट भी बिल्कुल एक डिपॉजिट रेट माने जिस पर बैंक जमा करता है उस डिपॉजिट रेट कहते हैं, एक लेंडिंग रेट जिस पर बैंक उधार देता है। तो अगर डिपॉजिट रेट मान लीजिए 5% है और लेंडिंग रेट 18% है, तो अगर 18% है तो लोग कम लेने आएंगे, 12% है तो ज्यादा लेने आएंगे, 10% है तो और ज्यादा लेने आएंगे। तो ये और चीजों पर भी निर्भर करेगा, लेंडिंग रेट कितना है, या कैपिटल की कॉस्ट कितनी है, या मार्केट की ओवरऑल डिमांड कितनी है। तो डिमांड पर निर्भर करती है सप्लाई, ऐसा हाई पावर्ड मनी थ्योरी वाले कहते हैं। सप्लाई पर भी हम कंट्रोल करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? लिमिटेशंस इन सप्लाई। लेकिन जो लिमिटेशंस इन सप्लाई होते हैं वो रिजर्व बैंक के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। उसके करने के कई और कारण हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सेंट्रल बैंकिंग। तो कॉमर्शियल बैंकिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो इस लीज एंड टेलर से शुरू हुए, और इनका काम क्या है? इनके पास कैश होगा, इस कैश से क्रेडिट क्रिएट करेंगे, इस क्रेडिट से कैश क्रिएट कर देंगे। और किस तरीके से काम करेंगे? थोड़ा अब हम लोग क्लियरिंग के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये बड़ा सिंपल होता है अगर ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है तो। अगर ब्रांच बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो किस तरीके से होगा उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर मान लीजिए कि ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है तो किस प्रकार से काम होगा, अब समझने की सिंपल सी बात है कि जैसे ब्रांच बैंकिंग सिस्टम है तो पीएनबी में डिपॉजिट हुआ, मान लीजिए कि इसके पास 10 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, तो इन लोगों ने अपना पैसा निकाला, किसी ने निकाला, किसी ने कार खरीदी और कार मारुति कंपनी के पास गई, तो मारुति कंपनी का अकाउंट किसमें है? एसबीआई में है। तो अगर इसमें से 8 लाख निकला तो सिंपल इनफ है, ये चेक इसको किसको मिलेगा? मारुति कंपनी को। तो ये पैसा कैश निकालने के लिए पीएनबी नहीं जाएगा, ये अपने खाते में एसबीआई में जमा कर देगा। फिर इसी से चेक काट करके अपना जो होलसेलर होगा उसके पास भेज देगा, या किसी और को देना होगा उसको भेज देगा। तो ये चेक इन्होंने इनके नाम काटा, इन्होंने इनके नाम काटा, इन्होंने इनके नाम काटा, वगैरह वगैरह। तो हर दोपहर को 12 बजे सारे बैंक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जिसका नाम होता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में स्टेट बैंक कहेगा कि मेरे पास 2000 चेक आए हैं, इतने बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, इतने इलाहाबाद बैंक के हैं, इतने पीएनबी के हैं, इनकी वैल्यू इतनी इतनी है, माने मुझे इन बैंकों से इतना पैसा लेना है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा कहेगा मुझे इन बैंकों से इतना पैसा लेना है। फिर पीएनबी कहेगा हमें इन बैंकों से इतना पैसा लेना है। तो होगा क्या? एसबीआई पे कुछ पीएनबी के चेक आए होंगे और पीएनबी पे कुछ एसबीआई के चेक आए होंगे, कुछ ना कुछ तो आए ही होंगे।
जितने जिस दिन आए हो उससे कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा, उस दिन मान लीजिए कि एसबीआई को टोटल और बैंकों से 10,000 करोड़ मिलना है और इसे मान लीजिए 11,000 करोड़ देना है। तो 10,000 करोड़ मिलना है, 11,000 करोड़ देना है, तो 10,000 तो क्या हो गया, इसे क्या कैंसिल आउट। यानी हम तुमसे ले रहे हैं, तुम हमसे ले रहे हो, किसी को कैश देने की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी पैसा बचा तो क्या वो कैश दिया जाता? नहीं, उसको हम कह देंगे इंटर बैंक डिपॉजिट। भाई हमारा समझ लो कि तुम्हारे पास जमा है, तुम्हारा समझ लो कि हमारे पास जमा है, कल फिर आएगा, कल फिर कैश करेंगे। तो ये इंटर बैंक डिपॉजिट्स पे क्या होता है कि मामूली आधा परसेंट 1% ब्याज लेकर एक दूसरे के डिपॉजिट्स को भी क्लियर करते रहते हैं। तो किसी बैंक का किसी और पर जमा होता है, किसी बैंक का किसी और पर जमा होता है। यानी अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो चेक सारे कैश, मतलब चेक आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जो पैसा बचा होता है उसी के लेन देन के बारे में बात होती है और किसी के लेन देन के बारे में बात भी नहीं होती। नतीजा क्या होता है कि पूरी बैंकिंग सिस्टम तो चलता रहता है और कैश का लेन देन नहीं होता। इसलिए जिस बैंक के पास जितना पैसा है लगभग उतना ही पड़ा रहता है। तो ग्राहक कहीं से भी आए उसको पैसा के पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। मान लीजिए अचानक ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो हम अपनी एसबीआई की दूसरी ब्रांच से भी मंगा सकते हैं, या हम एक और सिस्टम है इसमें हम किसी और बैंक से भी मंगा सकते हैं, ट्रेजरी से भी मंगा सकते हैं, ताकि बैंक से पेमेंट की प्रॉब्लम ना हो। डिफॉल्ट कब होता है या नैरो बैंकिंग कब होती है, वो तब होगी कि मान लीजिए एसबीआई के ऊपर रोज बढ़ता ही चला जा रहा है और चेकों का भंडार, एसबीआई पेमेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो बाकी बैंक कहेंगे भाई आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन अब आपको ये चेक्स क्लियर करने चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी बैंक में ऐसा हुआ है कि उसके पास उधार लेने वालों ने पैसा जमा नहीं किया या उधार लेने वाले क्या हो गए, गायब हो गए, तब ये प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी तो हमने केवल इसी वाली बैंकिंग को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंकिंग ऑफ ए कंपनी। आरटीजीएस है, बहुत होते हैं बेटा ये। अब तो ये तो टेक्नोलॉजी जितनी ग्रो कर रही है उस हिसाब से है ना। अब तो हम वॉलेट लेके गए, हमने मौसम्बी वाले से रस खरीदा, उसको पेमेंट कर दिया, तो हमारे खाते से पैसा उसके पास चला गया। उसको क्या करना, उसको भी तो कहीं से मौसम्बी खरीदनी है, उसने मौसम्बी खरीदने वाले को ट्रांसफर कर दिया, मौसम्बी खरीदने वाले ने नागपुर में ट्रांसफर कर दिया। दिस हैपेंस, ये तो क्रॉस चेक्स होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक क्रेडिट क्रिएशन को हम लोगों ने आज समझ लिया है और चीजें समझेंगे अभी। क्रेडिट कंट्रोल को भी पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक को भी पढ़ेंगे, फिर इन्फ्लेशन को भी पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आई हैव डन माय जॉब फॉर टुडे। मुझे आज कुछ और काम भी थे। अब हम लोग मंडे के दिन मिलते हैं, इज इट राइट? यस सर। हाँ, कोई और प्रॉब्लम? हाँ, कोई प्रॉब्लम? यस सर। तो मंडे के लिए हम लोग मिलेंगे। वी विल मीट ऑन मंडे सेम डे। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।